आसा इकत पतर भर उर्कट कुरकट, इकत पतर भर पानी। आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नकट दे रानी। नकटी को ठनगन बाडा डूं, किने बबेकी काटी तू। रहाओ सगल माहे नकटी का वासा, सगल मार ओ हेरी। सगलियां की हों बहन भान जी, जिन्हें भरी तिस चेरी। हमरो परता बड़ो भवेकी, आपे संत कहावे। ओ हमारे माथे कायम, और हमरे निकट न आवे। नाकों काटी कानों काटी, काट कूट के डारी। कहो कबीर संतन की बैरन, तीन लोक की प्यारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु सवारी साध संगत जीओ, ये गल भली भांत प्रगट है कि भगत कबीर जी की बाणी बहुत गूढ़ है। इसनू समझण वास्ते दास ने कई विद्वानां दे सटीक पढ़े ने। संप्रदायी ज्ञानियां ने आम जग्यासुआं की सहूलत लई इन्हां शब्दां दे अर्थ बड़े विस्तार नाल कीते ने। कई साखियां जोड़ियां हन, कई उथानकां बनाईयां हन। दास ने उन्हां सारियां नूं पढ़न अते समझण दा यतन किया। तो मैं क्योंकि प्रिंसीपल साहिब सिंह जी दे इस व्याकरण तो इन्हां लगा मात्रां तो बहुत प्रभावित भी हाँ। ये ठीक है कि इस गल नूं कुछ संप्रदायी लोग होर तरह देखते हैं, पर यह उन्हां दी मौज है। मैं उन्हां संबंधी कुछ भी नहीं कहता, बेनती जरूर करता कि आपां नूं बाणी तो की ज्ञान मिलता। दो पक्ष हन, एक है माया विच खचत हो जाना, एक है माया दी ठीक वरतों करनी। गुरमत दा रस्ता ये है कि माया तो बिना गुजारा भी नहीं हो सकता। और साडे गुरु साहबान ने माया दे त्यागण की गल किधरे नहीं की। उन्होंने ते फरमाया धर्म की किरत करो, नाम जपो, वंड छको। उस कीती हुई धर्म की किरत विचों दसवंध कढो। पर आम तौर पर देखण विच आउंदा है कि जिहड़े लोग माया के प्रभाव थले आ जाते हैं, उन्हां कोलों नितनेम, बाणी, सिमरन ये चीज़ां कुछ घट जांदियां। हौली हौली वो माया विच इन्ने गलतान हो जाते। तो भगत कबीर जी ने एक नक्शा खिंच के समझाया। आख्या नकटी को ठनगन बाडा डूं। ये नकटी शब्द उन्होंने निर्लज माया वास्ते वरते, जिन्हों शर्म शर्म कोई नहीं है। भगत जी कहते ने इस माया का वाजा, बाडा का मतलब है वाजा,
ਡੌਂ ਡੌਂ ਕਰਕੇ ਠਣ ਠਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਭੱਜ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਧਰ ਵੇਖੋ ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਾਈ ਤੁਮਰੇ ਚਰਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਜਿਨ ਕੀਨੇ ਵਸ ਆਪਣੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ, ਭਵਨ ਚਤੁਰ ਸੰਸਾਰਾ। ਜਗ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਪ ਥਾਨ ਖੰਡੇ ਕਿਆਏ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰ। ਭਾਵ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਜਾਓ, ਨਕਟੀ ਕੋ ਠਨ ਗਨ ਬਾਡਾ ਡੂੰ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਾਜਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਕਿਨੈ ਬਵੇਕੀ ਕਾਟੀ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਆ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਵੇਕੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਿਚਾਰਵਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਬਵੇਕ, ਬਵੇਕੀ, ਵਿਵਾਕੀਆਂ, ਬਵੇਕੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਵੇਕ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਚਾਰਵਾਨ। ਬਵੇਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਬਵੇਕੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਹੁਵਚਨ, ਵਿਚਾਰਵਾਨ। ਤੋ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹਰ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਜਗਿਆਸੂ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਨਕਟੀ ਕੋ ਠਨ ਗਨ ਬਾਡਾ ਡੂੰ, ਕਿਨੈ ਬਵੇਕੀ ਕਾਟੀ ਤੂੰ। ਰਹਾਉ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਇਸ ਨਕ ਕਟੀ ਦਾ, ਇਸ ਨਿਰਲੱਜ ਦਾ ਵਾਜਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਡੌਂ ਡੌਂ ਕਰਕੇ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਿਨੈ ਬਵੇਕੀ ਕਾਟੀ ਤੂੰ, ਕਿਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾਇਆ, ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੱਸਦੇ। ਇਕਤ ਪਤਰ ਭਰ ਉਰਕਟ ਕੁਰਕਟ, ਇਕਤ ਪਤਰ ਭਰ ਪਾਨੀ। ਪਤਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਰਤਨ ਲਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਉਰਕਟ ਕੁਰਕਟ ਕੁੱਕੜ ਦਾ ਰਿੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਕਤ ਪੱਤਰ ਭਰ ਪਾਨੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਥਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਟ ਮਧੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸੇਵਕ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ। ਇਕਤ ਪਤਰ ਭਰ ਉਰਕਟ ਕੁਰਕਟ, ਇਕਤ ਪਤਰ ਭਰ ਪਾਨੀ। ਆਸ ਪਾਸ ਪੰਚ ਜੋਗੀਆ ਬੈਠੇ, बीच नकट दे रानी। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਂਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਟੁਕਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਆਸ ਪਾਸ
ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਪੰਜ ਜੋਗੀਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੋਗੀਆ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜੋਗੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਸਰ ਥੱਲੇ ਹਨ। ਜੋਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੁੜਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਸ ਪਾਸ ਪੰਜ ਜੋਗੀਆ ਬੈਠੇ, ਬੀਚ ਨਕਟ ਦੇ ਰਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਨਕਟੀ ਮਾਇਆ ਰਾਣੀ ਬਣ ਕੇ, ਚੌਧਰਿਆਣੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ। ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਥਾ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਗੱਲ ਊਲ ਜਲੂਲ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਕਤ ਪਤਰ ਭਰ ਉਰਕਟ ਕੁਰਕਟ, ਇਕਤ ਪਤਰ ਭਰ ਪਾਨੀ, ਆਸ ਪਾਸ ਪੰਚ ਜੋਗੀਆ ਬੈਠੇ, बीच नकट दे रानी। नकटी को ठन घन बाडा डू, किन्ह बभेकी काटी तू। किसी विचारवान ने तैनू पटिया है, नहीं तो बहु गिणती जिहड़ी है वो तेरे प्रभाव थले। फिर रहाओ तो अगली पंक्ति विच फरमांदे, सगल माहे नकटी का वासा। कुदरती गल है, जदों सारे पिंड विच बहुते लोग एक पासे लगे हों या संसार विच बहुते लोगों का ध्यान एक पासे होवे, फिर असीं कहने जी सारी दुनिया ही इस पासे तुरी। पर ऐसा नहीं होंदा। विरले विवेकी भी होंदे ने, विचारवान भी होंदे ने। इसे लिए सियाणियां ने कहा पंजे उंगलां इक्को जिहियां नहीं होंदी। पर यह जरूर है कि जदों बहुते लोगों का ध्यान किसी पासे होवे ते असीं आम तौर पर कह दें जी सारे ही इस पासे तुर पए। भगत जी ने ठीक कहा है, बहु गिणती जिहड़ी है उन्हां विच ते इहो ही प्रभाव। कई बारी मैं देखिया कि जिहड़े बचना चाहुंदे ने उन्हां नूं भी लोक नहीं बचण दिंदे। अपनियां बोतलां आप खरीद के लिया के पीण लग पैंदे। समाज दे अंदर रिश्तेदारी भी है, चंगे भी हन, मंदे भी हन, ते उन्हां विच रह के वरतना भी पैंदा। पर भगत जी के कथन मुताबक सगल माहे नकटी का वासा, जिथे जाओ सब जगह माया की गल है। ते माया आएगी तो फिर आ सारिया चीज़ां भी होणगी। सगल मार ओ हेरी, आख्या माया बड़ी ताकतवर, ये एक एक नूं मार के फिर वेखती है, कोई बचिया तो नहीं, कोई मेरे प्रभाव तो बचते नहीं गया। बड़े बड़े त्यागी, बड़े बड़े बैरागी, बड़े बड़े ज्ञानी सब फस जाते। ये ऐसे तरीके नाल ढंग मारती है कि फस जाते। भगत जी का कथन बिल्कुल अटल सच्चाई वर्गा। सगल मार नकटी का वासा, सब नूं मार के ये नकटी अपना प्रभाव। सगल मार ओ हेरी, इस सबना नूं मार के फिर चंगी तरह नीज ला के तकदी, फिर कोई बचते नहीं गया। फिर एक की कहती, सगलियां की हों बहन भाण जी। आख्या मेरा रिश्ता सब नाल, किसे नाल थोड़ा किसे नाल बहुता, मैं सारियां दी कुछ ना कुछ लगदी हाँ। किसे दी भैण हाँ, किसे दी भणेवी हाँ। भाव मेरे तो बिना कोई रह नहीं सकता।
तो सचमुच साध संगत गल ते ਉਹਦੀ ठीक है। ते भगत जी ने जो नक्शा खिंच के समझाया वो भी ठीक है। आख्या सगल माहे नकटी का वासा, सगल मार ओ हेरी, सगलियां की हूँ बहन भन जी। क्योंकि भगत जी हैं यूपी दे, असी भैन भणेवी कहने, वो बहन भन जी कहते। ये बोली का फर्क। भाव असी भी जेडे हिंदी बोलन लग पे बहन आम तौर पर कहते, जिन्हें बरी तिस चेरी, जिसने मैनू दबा लिया, जिहड़ा मेरे प्रभाव तो बच गया, ਉਹਦੀ मैं दासी बन जानी। तो कहने का मतलब ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ प्रभाव थले नहीं आए, माया कहती उन्हां दी मैं दासी है। सगलियां की हों बहन भन जी, जिन्हें बरी तिस चेरी। इसलिए बाणी च लिखिया माया दासी भगतां की कार कमावे। हुण तीजे पद विच माया दा ही बयान है। हमरो भरता बड़ो बवेकी। भरता शब्द खसम नहीं वरत्या जा। कहते जेड़ा बड़ा विवेकी है, विचारवान है, वो मेरे प्रभाव तो बच जाता ते ओदे मैं चरना की दासी बन जानी। हमरो भरता बड़ो विवेकी। देखो ये जिहड़ा विवेकी शब्द है, इनू ते विचारना पवे। असी भी जे बचना चाहिए तो विचार तो कम लेना पवे। बाणी भी जगह जगह ते लिखे जेड़े को बिरला विवेकी, जिहड़ा विचारवान है, वो कहता मैं नहीं गलत काम करता, मैं नहीं शराब पिलाउंदा, मैं नहीं मांस खवाउंदा। तो गल तां विचार दी है। भगत जी कहते ने हमरो भरता बड़ो विवेकी, आपे संत कहावे। वो अपने आप नूं संत कहाउंदा है तथा लोग उसनूं संत कहते। बई ये इन्हां चीज़ां तो रहता है। ओ हमारे माथे कायम। आख्या उदा मेरे ते प्रभाव है, उदा हुक्म मेरे सिर ते चलता है, तथा उदे हुक्म विच मैं सिर निभाउंदी। हमरो भरता बड़ो विवेकी, आपे संत कहावे। ओ हमारे माथे कायम, और हमारे निकट न आवे। होर किसी का मेरे ते प्रभाव नहीं पैंदा। लो अखीरली पंक्ति विच भगत जी ने बड़ी कमाल की गल कही। हुण उस टीकाकारां ने एक माया औरत बनाती, उन्होंने भगत कबीर जी को लै आंदा, उहदा नख कटाता, उहदा कन कटाता। पर गल असल जो है उन्होंने किसी ने छेड़न का यतन नहीं किया। कबीर जी कहते हैं नाकों काटी कानों काटी, काट कूट के डारी। मनुखा नूं दो पासियों माया मारती, एक नक वाले पासियों, एक कन वाले पास। आम तौर पर गृहस्थी जदों कोई प्रोग्राम की रूपरेखा उलीकदा, पति पत्नी घर विच बह के विचार करते, ते आम तौर पर पत्नी कहती है देखो सरदार जी, जे आपां आ काम ना कीता, साडा समाज विच नक नहीं रहना। हुण नक रखण वास्ते या तो जमीन का किला गहने पाओ या करजा लो। फिर जदों मुखत दी शराब पीती पलाई, फिर वो पुछते फिरते ने सुनाओ जी ब्याह किहो जिहा होया।
ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਕੀ ਛਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਇਉਂ ਬਚੇ ਹਾਂ, ਨਾਕੋਂ ਕਾਟੀ ਕਾਨੋਂ ਕਾਟੀ ਕਾਟ ਕੂਟ ਕੇ ਡਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਹਿਰਨ, ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਪਿਆਰੀ। ਆਖਿਆ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਜੇ ਵੈਰਨ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੁਰਗ ਮਾਤ ਪਤਾਲ ਲੋਕ, ਭਾਵ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੈਰਨ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।